अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3A हम कर चुके हैं, बल्कि हम कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने किए हुए। ये क्लास 3 की बुक है, काउंट डाउन क्लास 6 की, सॉरी, न्यू काउंट डाउन बुक है, सेकंड एडिशन है ये आपको नज़र आ रही होगी। दोबारा ये वाली बुक है, ये वाली, ठीक है। और इसकी जो एक्सरसाइज 3A है, ये एक्सरसाइज 3A हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 10, 11 एंड 12 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि भी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ज़रा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग 21 बिटवीन 100 एंड 200। यानी 100 से लेके 200 तक के 21 के मल्टीपल्स आपने निकालने हैं। कैन यू डू इट वकास? 42, 63, 84। मतलब देखिए 21 के जो मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 21 बिटवीन 100 एंड, क्या लिखा हो बेटा? 200। तो आप 21 42 क्यों बोल रहे हो? 21 क्या 100 और 200 के दरमियान में? हाँ, 100 से अबाउ जो आपके पास है। देखिए 41, अगर आप 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपका 100 से अबाउ शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए 4 से करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 आ रहा है। 84 is below 100, so this will not be counted. Okay, are you getting it? So the next multiple will be 21 multiplied by 5, 21 multiplied by 6, 21 multiplied by 7, or 21 multiplied by 8. Let's check this one. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 105. Second, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 126. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 147. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 168. 21 multiplied by 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18. और next जो होगा, that will be about 200. Okay, because let's check this one. 21 multiplied by 10, you will get 210. So these are the multiples that is between 100 and 200. Okay, so multiples of 21 between 100 and 200 is 105, 126, 147, 168. Okay, okay, 168 in 189. These are the multiples which are the multiples of 21 which are between 100 and 200. Okay, the next question is the multiples of 27 between 150 and 250. So now what can you do this one? Look at this. 27 multiplied by 4, that will be above 100. And 27 multiplied by 5 and 6, that will be above 150. Look at this. Check for 27 multiplied by 5, that will be below 150. Look at this. Multiplied by 5. 5 7s are 35. 5 2s are 10, 13, 1. It is 135, which is below 150. So this will not be counted. So you have to 27 multiplied by 6, 27 multiplied by 7, 27 multiplied by 8, 27 multiplied by 9, and you will get all the multiples which will be between 150 and 250. 6 7s are 42, 6 2s are 12, plus 4 is 16, 162. First one, which is above 150. Next one, 7 7s are 49, 7 2s are 14, plus 4, 18. It's 189. Okay. Next one, 8 7s are 56, 8 2s are 14, plus 5 is 19, 196. Okay. 9 7s are 63, 9 2s are 18, plus 6 is 24. And the next one is 27 multiplied by 10, that will become 270. That will be above 250. So you are getting
the multiples, the required multiples or these one, okay. So the multiples of 27 between 27 multiples of 27 between 150 and 250, they are given here. These are the values. I think we do need to write this one: 162, 189, 196, 243. These are the required multiples of 27, which are between 150 and And 250. 250. Okay, so this one, the part 2 of question number 8, and part 3, question number 3. I think this is homework for you. It is between 100 and 250. So 37 4 is 37 3, 3 sevens are 21, 3 is a 9. So 37 threes are above 100, and then you can count them till 250. So all the multiples which are between 100 and 250, that will be your answer. You have to find out all those like this one, by this way, okay. So this is question number 8, okay. Now question number 9. Question number 9 is, state which of the following numbers are divisible by 11. Divisible by 11. So we have done this one. The numbers which are divisible by 11, what is the clue for that? How can you find whether the number is divisible by 11 or not? Can you tell me this one? No. आपको पता नहीं, ये उस दिन मैंने बताया था बेटा, कौन से नंबर 11 से डिवाइड हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे हैं. आई थिंक इट हैज़ बीन ऑलरेडी वी हैव डन. देखिए, लेस द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन, नो, नॉट बीन मेंशन्ड हियर, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस वन, आई थिंक. Yes, the question number 7. Without actual division, state whether each of the following number is divisible by 2, 3, 5 or 11. So we have already discussed the number divisible by 11. What are the rules for that one? You understand that one? You forgot that? मैंने क्या कहा था आपसे बेटा? कहा था कि देखिए, जो अल्टरनेट नंबर्स होते हैं, मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ यहाँ पे. लेट्स से एक नंबर ले लीजिए. अगर उनके सम का डिफरेंस अगर 0 आ रहा हो या डिविजिबल बाय 11 हो, दैट विल बी डिविजिबल बाय 11. अदरवाइज दैट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11. Look at this. We got some numbers. 1661 is one. Look at this one. These are the alternate numbers, and these are the alternate numbers. Now sum of these numbers: 1 plus 6 7. 6 plus. और 6 plus 1 7. दोनों के सम, अल्टरनेट नंबर्स के सम का डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है. क्या आना चाहिए? 0 0 और 11. और डिविजिबल बाय 11 हो. 11 ना, 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है. 11 ना हो, बल्कि डिविजिबल बाय 11 हो. अगर आपके पास 0 आ रहा हो, 11 आ रहा हो, 22 आ रहा हो, 33 आ रहा हो, 44 आ रहा हो, 55 आ रहा हो, means the multiple of 11 आ रहा हो. So that the number then whole will be divided by 11. So this number is divisible. This number is divisible by 11. You understand the reason? The reason is very simple. You have to add the alternate numbers. These are the 1, 6. This is the alternate. These are the alternate numbers, and these two are the alternate numbers. Add them and then subtract them. सब्ट्रैक्ट कर दे, उसको माइनस कर दे. अगर आपके पास रिजल्ट 0 आ रहा हो या 11 का मल्टीपल आ रहा हो, तो फिर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, तो मैं जल्दी आपको ये नंबर, कुछ नंबर बता देता हूँ. पार्ट ये वाली रो मैं आपके लिए कर देता हूँ. ये आसान वाली रो आपके लिए छोड़ देता हूँ. ठीक है, ये 103081, 10308. दिस इज अ नंबर. अल्टरनेट नंबर्स आर दीज, and these are alternate numbers. 8 कीजिएगा. 1 plus 3 4, 4 plus 8 12, minus 0 plus 0 is 0, 0 minus 1. 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1. So एक का सम 12 आ रहा है, दूसरे का सम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. 12 minus 1 is 11. 11 is the multiple of 11. So
दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11. 11. यू गॉट दिस वन. ठीक है. तीसरा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देख लीजिएगा. 38453. दीज आर द नंबर्स 38453. अब देखिए कितना बड़ा नंबर है. तो अगर हम इसको 11 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें, 11 से डिवाइड करना शुरू कर दें, तो दैट विल टेक टाइम. ओके. सो यू नीड to have some clue for that one, to find out shortly whether the number is divisible by 11 or not. So the rules are simple. We have already discussed that one. So now these are the alternate numbers and these two are the alternate number. 8 कीजिएगा. 3 plus 4 7. 7 plus 3 10. 10. Minus 8 plus 5 13. बल्कि बड़े से छोटे को माइनस करें. 13 minus 10 is 3. This is not 3 is not the multiple of 11, so and it's also not equal to 0. It means this number is not divisible by 11. 11. You got this one? This is the simple rule. Now you have to solve all the questions. Question number 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And you have to solve this question and you will have to write this in your homework copy. Are you getting this one? Okay. Question number 10 पे आप आ जाइए. And now question number 10 is this one. Here is question number 10. Okay. Now, give an example of a number which is divisible by 7 but not by 14. कोई ऐसा नंबर जो देखिए एक ज़हन में रख लो, जो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा हो, जो नंबर 14 से डिवाइड हो रहे हैं, वो सारे के सारे 7 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 14 7 के टेबल में आ रहा है. तो जैसे 14 का 28 तो 7 का लाजमी मल्टीपल होगा. अगर 14 का 42 मल्टीपल है तो वो 7 का लाजमी मल्टीपल होगा, क्योंकि 14 भी तो 7 का मल्टीपल है. ऐसे डबल डबल है थोड़ा सा. लेकिन वो कह रहे हैं कि वो नंबर बता दे. गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 14. दैट नंबर इज 7. ओनली 7 है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, 14 से डिवाइड नहीं हो रहा. इसके अलावा जितने नंबर्स आगे होंगे, वो 7 से नहीं होते. अगर वो 14 से हो रहे हो तो 7 से भी होंगे. देखिए 7 से जितने नंबर, अच्छा एक मिनट, विच इज डिविजिबल बाय 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 14. एक और नंबर भी तो है, 21 भी तो है. 7 के मल्टीपल्स में एक छोड़ के जो एक आ रहा होता है, जैसे 7 आ रहा है तो 14 तो 14 का है, डिवाइड हो रहा है. 21 आ रहा है, 28 नहीं है. जैसे 12 35 आ रहा है, 12 नहीं बेटा, जो 7 का मल्टीपल आ रहा हो. देखिए ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ इस टाइप का. क्या? 12 है तो वो 6 के टेबल में भी आएगा. से फिर 24 है, वो भी 6 के टेबल में आएगा. एग्जैक्टली 36 भी आएगा. लेकिन अब 6 के सारे टेबल्स 12 के टेबल्स में नहीं आ रहे. 18 12 के टेबल में नहीं आ रहा. 30 12 के टेबल में नहीं आ रहा. ठीक है. 42 12 के टेबल में नहीं आ रहा. तो 6 के मल्टीपल्स अब इस तरह से 7 के मल्टीपल्स है, तो 7 के सारे मल्टीपल्स 14 के मल्टीपल्स नहीं है. समझ आ रहा है? ठीक है. 14 के सारे मल्टीपल्स 7 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन 7 के सारे मल्टीपल्स 14 के मल्टीपल्स नहीं है. ठीक है. तो एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं? 7 दे सकते हैं, 21 दे सकते हैं, 28 तो नहीं है, तो ये 35 दे सकते, एक छोड़ के 42, तो फिर आप 49 दे सकते हैं, एंड सो ऑन. एक छोड़ के जो नेक्स्ट होता है वो आपके पास ये सारे मल्टीपल्स है. तो यहाँ पे गिव एन एग्जांपल, आप एक एग्जांपल बता सकते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं. नंबर 2, डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 15. तो देखिए 5 भी 15 से डिवाइड नहीं हो रहा, 10 भी 15 से डिवाइड नहीं हो रहा, 20 भी 15 से डिवाइड नहीं हो रहा, 25 भी 15 से डिवाइड नहीं हो रहा. तो 15 के सारे मल्टीपल्स 5 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन 5 के सारे मल्टीपल्स 15 के मल्टीपल्स नहीं है. जैसे 5 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 25 नहीं है, 35 40 नहीं है, एंड सो ऑन. बहुत सारे. ठीक है. इस तरीके से. तो अच्छा, क्वेश्चन पार्ट 3, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6. दिस इज फॉर यू. 9 है, चले मैं बता ही देता हूँ, 15 है, 21 वगैरह बहुत सारे. ठीक है. तो दूसरा, टेस्ट वेदर 6 इज
a divisor of 504. डिवाइजर आप समझ रहे हो? मतलब आप कह सकते हैं कि डिवाइजर का मतलब ये कि फैक्टर। क्या 6504 का फैक्टर है? 6 के लिए क्या रूल्स है मुझे बताइए 6 के लिए। ओके, आई एम टेलिंग यू और अंडरस्टैंड करें, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा हो और 3 से डिवाइड हो रहा हो वो 6 से डिवाइड होगा। और 2 के लिए रूल्स क्या है? 2 के लिए 0 जो इवन नंबर है। कहाँ पे इवन नंबर्स हो? 2 यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो या जीरो हो? 2 से होगा। यूनिट प्लेस पे जीरो या इवन नंबर हो, यानी 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, इनमें से कोई नंबर हो तो 2 से डिवाइड होगा। नंबर एक चीज। 3 के लिए क्या रूल्स है? 3 के लिए एनी ऑड नंबर। नो, उस नंबर के अंदर डिजिट्स को प्लस कर दें और उसका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, तो वो 3 का मल्टीपल अगर आ रहा है तो जैसे अब इस क्वेश्चन को जरा देखें। 504 एक नंबर है, अगले पेज पे कर देते हैं। ये 504 एक नंबर है, ठीक है। ओके, ये देखें, ये 504 एक नंबर है। अब आप ये देखें, पहले 2 के लिए देखें, यूनिट प्लेस पे आपके पास इवन नंबर है यस, तो डिविजिबल बाय 2 है, एक शर्त पूरी हो गई। दूसरे अब 3 की शर्त देख लें। 5 + 0 5, 5 + 4 9, 9 3 का मल्टीपल है। यस। हाँ, तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, 6 से। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगला क्वेश्चन देखें, 306 है, 306। ये देखिए यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइडेड है, डिविजिबल है। और 6 + 3 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है, 6 से भी तो ये दोनों 6 से डिविजिबल। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो नहीं होगा, 4128, 4128 देखते हैं क्या हो रहा है। यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइडेड, डिविजिबल है। 4 + 1 5, 5 + 2 9, 9 + 8 9 + 8 17, 17 is not the multiple of 3, This is not due. so it's not divisible by 3, it means it's not divisible by 6। दोनों 6 के लिए शर्त ये है कि 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, तब जाके वो 6 से डिवाइड होगा। तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है but it's not divisible by 3, so this whole number is not divisible by 6। Or 6. 6 we have to find out for 6, okay। Next one is 4510, 4510, 4 + 0, so it means it is divisible by 2। 2 11 4 + 5, 4 + 5 9 9 + 1, 10 it's divisible by 3, No. no, so it's not divisible by 6। ये दोनों 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 6 के लिए क्या रूल्स हैं। लास्ट क्वेश्चन, टेस्ट वेदर 9 इज डिवाइजर ऑफ। अब आपने ये देखना है कि क्या इसका 9 इसका डिवाइजर है, मतलब कि ये 9 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। गुड। तो अब 9 के लिए भी सेम रूल्स, जो रूल्स 3 के लिए हैं, दैट रूल इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द 9। द सम ऑफ द डिजिट इफ इट्स मल्टीपल ऑफ 9, सो the number will be divisible by 9, otherwise it will not be divisible by 9, so 9 will not be the factor of that one, okay। So here is the question, 207, add the digits, 2 + 0 + 7, you got 9, 9 is the factor of 9, so this 207 is divisible by 9। मतलब 9 इसका फैक्टर है या 9 इसका डिवाइजर है। डिवाइजर का मतलब ये होता है कि उससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो इसका डिवाइड मतलब फैक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। तो 207 इज द डिवाइजर ऑफ 9, ओके। 9 इज द डिवाइजर ऑफ 207।
4050 अगला क्वेश्चन 4050 सेम क्वेश्चन 8 कीजिएगा यू विल गेट 9 अगेन इट इज डिविजिबल बाय 9 2727 2727 279 plus 279 9918 ये भी होगा। it's also divisible by it's also the multiple of 9, so this number is also divisible by 9, or you can say that 9 is the divisor of this one. You getting this one? And the last one 3655, I think 3655 369 910 19 This is not 19 divided is by- not the multiple of 9, so it's not divisible by 9, means 9 is not the divisor of this number. So this exercise is over. Exercise 3A we have finished this one. Exercise 3B we will continue exercise 3B in the next video inshallah. Take it, because it's there are 11 questions exercise 3B, so it's not possible today. So in the next video inshallah we will continue exercise 3B. Yeah?